सेवन पॉइंट फोर 7.4 से शुरू करना है हमको। यस मैम। ओके चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम पॉइंट 7.4, इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। Okay, what is the characteristics of India as a developing India? India was an underdeveloped economy initially, but we came over and above the, you can say, tag of underdeveloped economy. Now India is a developing economy because we don't have the tag of underdeveloped economy. Initially, the world was divided in three, you can say, countries: first world country, second world country, third world country. Developed, developing, underdeveloped. Now the concept of underdeveloping has been removed. None of the countries underdeveloping. All the countries are developing or developed. Countries like Japan, America, Canada, they come under the concept of developed economy. India, Bhutan, Nepal, these are the countries, these are part of a developing economy. Okay, so how you can say that India is having a, you can say India is a part of a developing economy, or it is progressing towards बीइंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी। आज हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के तरफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। how we can say that? We can say on the basis of the growth rate of our country. The first point is our growth rate. ग्रोथ रेट क्या होता है कि जैसे आपकी हाइट है, रचित है, रचित हमेशा इतना लंबा नहीं था ना, पहले थोड़ा छोटा था। व्हेन बीइंग अ चाइल्ड हम लोग एक लेवल तक हर साल हमारी एक कुछ इंच हाइट बढ़ती है ना। एंड आफ्टर अ वाइल यू बिकम एन एडल्ट। सब ये सुनो, सब लोग बचपन से तो इतने बड़े थे नहीं। तो सेम वे कंट्रीज के भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं, एवरी ईयर उसमें प्रोडक्शन के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। ग्रोथ मीन्स इट इज मेजरेबल इन नंबर ऑफ क्वांटिटी वाइज। हर साल मतलब जितना अनाज हमने लास्ट ईयर उगाया था उससे ज़्यादा हम इससे नेक्स्ट ईयर उगाएंगे, है ना। तो एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग, so that is known as your growth rate. The quantitative change in the you can say overall production of a economy is your growth rate. अगर हम लोग growth rate की बात करें तो initially it was quite low because as we got independence, जब हमको independence मिला उसके बाद में क्या हुआ कि we had been robbed by Britishers. हमको Britishers ने एक तरह से लूट लिया था और उस लूटपाट की वजह से हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम था। हमारे फैक्टर्स, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे सारे रिसोर्सेज क्या थे, ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए, कोहिनूर ले गए, यू आर ऑल नो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग अभी भी बता सकते हैं। सो 1950 से लेकर 51 के बाद में ग्रोथ रेट बहुत कम था। Highest growth rate was seen in the year after the year 1990-91. What is the reason for that? The reason is LPG. LPG means liberalization, globalization and privatization, or liberalization, privatization, globalization, which was introduced by the you can say Narasimha Rao. Narasimha Rao के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड एट दैट टाइम आवर फाइनेंस मिनिस्टर वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार दरवाजा बंद कर देती हूँ, थोड़ी आवाज हो रही है, एक सेकंड ना। Yes. So during the reign of Narasimha Rao and the finance minister was our Dr. Manmohan Singh. He was a great economist. They brought this policy of LPG not only because we wanted to growth and development, but we had you can say we were pressurized by IMF, International Monetary Fund. जो IMF है उसने हमें प्रेशराइज किया था कि अगर आपको लोन चाहिए, we wanted to get loan to
cope up with the crisis. ये सब डिटेल में आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे about this. So India was facing a you can say real financial crisis at the time of 1991. So government went to IMF to get the loan, but they denied कि अगर आप इसी तरह की पॉलिसी से the policy of more of a socialist, less of a capitalist economy, India was more of a socialist economy, less of a capitalist economy. तो बोला आप इसी पॉलिसी से चलोगे तो हम आपको लोन नहीं दे सकते. If you want loan, so you will have to follow the new policy of LPG, which has been followed by maximum countries of the world. So we as India, we followed that policy, and after 1991 this started. I think most of you were not even born at that time. आप में से बहुत सारे बच्चों का तो तब जन्म ही नहीं हुआ था, बट दैट वाज द टाइम ऑफ दूरदर्शन के तब दूरदर्शन हुआ करता था, जी टीवी, स्टार, ये सब कुछ भी नहीं था बिफोर 1991. So lots and lots of changes came. Privatization हुआ, liberalization हुआ, globalization हुआ. Due to that, the growth rate which was 2 to 3% or 3.5% initially, as you can see यहाँ पर 3.5% दिया है, it was 3.5% around before 1981, increased or doubled by to 6.8%. You can see over here, ये रहा 6.8% पर वो पहुँच गया. In 2012-13 again the growth rate slowed down. ठीक है, क्योंकि एक जब भी हमने कोई पॉलिसी लाए थे 91 की पॉलिसी, वो 10 साल तक उसके इम्पैक्ट दिखाई दिए और उसके बाद में क्या होता है, उसका इम्पैक्ट कम हुआ तो ग्रोथ रेट फिर से 5% पे आ गया. सो नाउ वी नीड वन मोर. जैसे बोलते हैं ना, एक दवाई है, अगर आपको बुखार है तो हम अगर दवाई देते हैं वो 6 घंटे काम करती है. 6 घंटे के बाद में आपको क्या चाहिए, सेकेंड डोज चाहिए, है कि नहीं, है ना. सपोज हमको बुखार है तो फिर वैसे ही हुआ कि इकोनॉमी में 1991 में एक डोज मिला था एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसका बेनिफिट 10 साल 11 साल तक दिखाई दिया, ग्रोथ रेट बहुत हाई रहा. अब जो है 2020 में या फिर अब एक नई फाइनेंशियल पॉलिसी की एक बहुत बड़े चेंज की, और अब तो कोविड भी है तो एक बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है, विच विल बूस्ट द ग्रोथ रेट ऑफ आवर नेशन. अब क्या है, वो एलपीजी का जो पेट्रोल डाला था गवर्नमेंट ने वो कम होता जा रहा है. काम हो जाएगा. ओके भाई, अपने अपने माइक्रोफोन बंद रखिए प्लीज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर यू कैन से ग्रोथ रेट. उसमें नेट नेशनल इनकम है आपकी फैक्टर कॉस्ट पे, इट वाज 2,69,724 करोड़ विच इंक्रीज टू 87,51,832 करोड़ in 2013-14. Thus, in 63 years, our net national income has increased by 18 times. So this is a promising increase. एक promising increase है, which shows that India is on the path of growth and development. Let us move further. Second point: national income and employment, agriculture sector, industrial sector and service sector. अगर हम तीनों की बात करें तो initially in India 53% of people were you can say employed in agriculture sector, यानी half of the population, India की half of the population agriculture sector में they were getting their occupational fulfilling their occupational needs in the agriculture sector. But as we came to 2014-15, the number of farmers has reduced, but the people working in the agriculture and allied activities has reduced from 53% to 17.6%. ठीक है, it has been 17.6%. Industries, you can say share of industries is increasing day by day, and share of service sector is increasing day by day, but agriculture sector is reducing day by day. The reason is agriculture sector is not giving that much of profit return. मतलब एक खेत है, 4 एकड़ का एक खेत है ना, और उसमें आप खेती बाड़ी करोगे तो साल के अंत में आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख मिलेंगे. ये सुनो, उसी खेत के ऊपर आप कोई रेस्टोरेंट खोल दो और उसमें बिजनेस करो तो आपको साल के अंत में शायद 50 लाख भी मिल जाए. मतलब आप सर्विस सेक्टर में काम करो, आप होटल इंडस्ट्रीज में काम करो. जैसे हम लोग राजस्थान से हैं, वी बिलोंग टू राजस्थान, ठीक है. हमारे खेतों में बड़े बड़े टीले होते हैं और वहीं पर एक कोई रिजॉर्ट टाइप बना दिया है. टीले मतलब क्या होता है, मिट्टी के ढेर होते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के ढेर. ओके, अब वो जो
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, गाँव में तो कहाँ उसकी है। तो वहाँ पर एक पर्सन ने क्या किया, वहाँ पे एक रिजॉर्ट बना दिया और एडवर्टीजमेंट कर दी कि भाई इफ़ यू वांट टू फील द यू कैन से ब्यूटी ऑफ राजस्थान, कम टू दिस रिजॉर्ट। और उस रिजॉर्ट की एक नाइट की स्टे कॉस्ट है 20,000 रुपीज़, जो खेतों में फ्री में मिल रही है। जो टीले हम लोग जब जाते तो हमें हंसी आती थी, ये फ्री में मिल रहा है, हमारे खेतों में बहुत सारे टीले, उसके वो एक रात के 20,000 30,000 रुपीज़। वो एक बाजरे की रोटी के वो 100 रुपये ले रहे हैं, हमारे यहाँ पे गाय भी नहीं खाती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसमें सर्विस का एलिमेंट इंक्लूड कर दो तो स्काई इज अ लिमिट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू दैट government has you can say people are moving towards you can say industrial sector and service sector. So agriculture industrial sector service sector bloom कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी बहुत सारा स्कोप है। इसीलिए गवर्नमेंट अभी अभी एग्रीकल्चर बिल लेके आई थी, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था ना। दो बच्चे थे जिन्होंने डिस्कस किया था। हु आर द स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है? एक मिनट मेरे को चेक करने दो, मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं रहते। टीचर खुशी, प्रियांशु और देव। खुशी, प्रियांशु एंड देव, वेरी गुड। हाँ, तो उन दिनों ने एक्सप्लेन किया था आपको अबाउट द योर एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको गवर्नमेंट ने अभी अगेन उसको रीथॉट प्रोसेस के लिए, और अभी फिर से उसको अभी 2 दिन पहले आया था न्यूज़ में कि court has given orders to rethink about the bill amendments। उसके सारे amendments को फिर rethink और चेक करने की जरूरत है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग इज योर per capita। So overall all the industries are, agriculture sector में भी ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ है। we had green revolution in agriculture sector by the year 1960-70 के आसपास में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रीन रेवोल्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पर कैपिटा इनकम। नाउ पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम स्टूडेंट्स? National income divided by total Total national income divided by total number of people, and it has increased by 5.6 times in the year 63 years में 5 गुना हो गई। I can give example. My father used to earn 400 rupees in the year 1980-81. 81 में when we came to he came to Ahmedabad. We were not even born. I was the first child. तो मेरी जन्म से पहले मेरे पापा को 400 रुपये पर महीने मिलते थे और he was quite happy with that। ठीक है, तो per capita income was quite low at that time, which has increased from 4 lakh 40,000, 50,000, 4 lakh per person, every person earning that, है ना। 400 रुपीज तो एक बोलते ना, एक पर्सन एक घंटे में शायद कमा ले। The per capita income of our country is increasing, but with that inflation is also increasing। इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है कि भाई उस जमाने पे माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि सोना शायद 300 रुपये 400 रुपये के भाव से मिलता था। अब सोने का भाव क्या है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ गोल्ड राइट नाउ? गोल्ड की प्राइस क्या है? 51,000। जो सोना 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये मिलता था, अभी वो 55,000। तो इन्फ्लेशन भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। सो बट स्टिल वी आर बेटर एज कम्पेयर टू वॉट वी वर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के सामने अभी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एजुकेशन जो है, फ्री एजुकेशन वी गेट, फ्री यू कैन से हॉस्पिटल फैसिलिटीज, सिविल में सारी फैसिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो ऑल दिस फैसिलिटीज आर क्वाइट गुड एंड दैट हेल्प्स अस टू you can say put ourselves in the group of developing economy, and in future we may lead ourselves towards the developed economy. Level of employment: primary, secondary and tertiary sector. Primary sector is your agriculture sector, secondary sector is your industrial sector, tertiary sector is your service sector. So तीनों ही उसमें the employment has been increased। as I told you, primary में थोड़ा कम है, primary में you can say एग्रीकल्चर। अच्छा, ये वाला पॉइंट उसके बारे में था, ओके माय मिस्टेक बेटा। चेंजिंग इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इनकम के बारे में था।
this table on page, ये मैंने शायद I took it as employment, but this table 7.4.2 में जो टेबल है, दिस इज यू कैन से allied income and उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है, initially it was 72%, and we got independence more than 70% people were employed in the agriculture sector. Still we have 50% of the people employed in the agriculture sector. Secondary sector and tertiary sector, the number you can say ratio is increasing. 10 से 12, 12 से 18, 18 से 24 हो रहा है. But tertiary sector और you can say tertiary sector में भी increase हो रहा है, and the increase in tertiary sector is higher as compared to the industrial sector. In agriculture sector में it is decreasing. Why? We have already discussed, because the profit margin in agriculture sector is quite good. But overall, all the sectors are booming and they are increasing their share in the GDP. GDP में हर साल उनका share increase होता है. Next is your improvement in basic primary utilities. All of you might have seen that movie Toilet. सब लोगों ने देखी है? सब सो रहे हैं क्या? विप्रा, हर्ष, Rachit, have you seen that movies like Toilet or Padman? Padman भी देखी होगी. No, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. these are the movies which shows the situation in the rural area. Rural area में कैसी situation है कि भाई एक basic thing जो हमको free of cost, क्या हमारे घर में एक घर में 2-2, 3-3 यू कैन से सैनिटेशन के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, टॉयलेट्स अवेलेबल है. गांव में एक भी नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ यू कैन से रॉन्ग नोशन, अंधश्रद्धा जो भी है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं है, ठीक है. तो रूरल एरिया में अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा स्कोप है. रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी आपको जो 24/7 365 जो मिल रही है ना, इट इज़ अ ड्रीम फॉर दोज पीपल. कई गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है, और अगर पहुंची है तो 24 घंटे नहीं मिलती है, 2 दिन में एक बार आती है, ठीक है. यानी अगर बच्चा पढ़ना भी चाहे, आपके जैसे नहीं कि भाई सो जाए, वैसे नहीं, पर जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. और अभी कोविड चल रहा है तो ऑनलाइन भी पढ़ना है तो आपको इंटरनेट चाहिए. तो इन सब बेसिक नेसेसिटी में एक चीज़ और ऐड हो गई है, दैट इज इंटरनेट. So this internet facility is, for example, last week I was out of station. I told you I went to Rajasthan. So their network is signals were pathetic. Pathetic means 2-2, 3-3 दिन में एक आधी बार कभी चल जाए तो चल जाए, अदरवाइज इट वाज इम्पॉसिबल टू रीच एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट व्हाट्सएप. कुछ भी नहीं चलेगा. जिस तरह से मैं जूम लेक्चर यहाँ पर ले रही हूँ, वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है. तो बेसिक नेसेसिटी है एक फूड, वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर. अगर पानी साफ नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, बताइए. हेल्थ एंड हाइजीनिक, हेल्थ हाइजीन की प्रॉब्लम हो सकती है. आज हम लोग गुजरात की बात करें तो कच्छ के ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, ठीक है. लोग किलोमीटर टू किलोमीटर जाते हैं टू गेट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर दूर की बात है, लेकिन पानी यू कैन से अवेलेबल ही नहीं. दे हैव टू फाइंड एवरी डे जस्ट टू गेट वाटर, ठीक है. सो रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स फॉर दैट. आवर प्राइम मिनिस्टर ही केम विद द इनिशिएशन दैट एवरी फैमिली शुड हैव दिस सैनिटेशन फैसिलिटी, एवरी फैमिली शुड हैव प्योर ड्रिंकिंग वाटर. ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट दैट बाय द ईयर 2030 हर घर, हर इंसान को गुजरात से इंडिया में सबके सिर पे छत होगी. एवरीवन वुड हैव हाउस, मतलब बंगला नहीं है, ठीक है, पर एक छत होगी. किसी को भी रोड पर या फिर बोलते हैं खुले में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज हिज एम. हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग. हेल्थ की अगर एजुकेशन की बात करें तो फ्री एजुकेशन टिल 8th स्टैंडर्ड इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. अदर देन 9th 10th के लिए दे हैव ग्रांटेड इन कॉलेजेस, ग्रांटेड एड स्कूल्स होती है 9th 10th 11th 12th के लिए, जैसे हमारी स्कूल है. और उसके अलावा है आपके वी हैव गवर्नमेंट कॉलेजेस. आपको पता है MBBS की कितनी फीस है सेल्फ फाइनेंस में? व्हाट इज द फीस ऑफ
बीइंग एन MBBS, एक साल की फीस कितनी होती है? किसी की फैमिली में किसी ने किया हो तो एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की फीस कितनी होगी MBBS की? एनी आइडिया? जस्ट अ गेस, वाइल्ड गेस. खुशी? ऑल ऑफ इट ओपन योर कैमरास ना. सब सो रहे हो क्या? Ma'am, minimum 1 to 2 lakhs. नहीं, it is 50 lakh rupees पर ईयर. MBBS की एक साल की फीस सेल्फ फाइनेंस की 50 लाख रुपए. मतलब आपके पास 3 से 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए हो ना, तब आप MBBS करने की सोच सकते हो. मैं सेल्फ फाइनेंस की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की नहीं. और गवर्नमेंट की फीस कितनी है पता है? इट इज़ मे बी 50,000 और 5 lakh rupees, maximum 4 to 5 lakh rupees, including all the expenses. You will be doing your MBBS. और वो भी अगर आपके पास नहीं है तो गवर्नमेंट विल गिव स्कॉलरशिप. गवर्नमेंट उसके लिए स्कॉलरशिप देगी. ठीक है. एक सोल्जर को बनाने में कितना पैसा लगता है? वन सोल्जर कॉस्ट यू 150, यू कैन से 70 से 80 लाख रुपए लगाते हैं तब जाके एक सोल्जर बनता है. उसकी ट्रेनिंग, उसकी सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, इट विल कॉस्ट यू सो मच. सोल्जर से उसके 80 लाख रुपए नहीं मांगते ना. So government creates jobs, government gives all this kind of education facility, health facility to the people so that they can increase their standard of living. हाँ, फिर आपको उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, आपकी जो एग्ज़ाम होती है, जो भी है JEE नीट को आपको क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है. गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर 2 से 3 करोड़ रुपए आपके ऊपर खर्च कर रही है टू मेक यू डॉक्टर, तो उनको ये दे शुड नो कि यू आर वर्थ इट. आपके अंदर वो क्वालिटी है. उसके लिए आपको JEE या फिर नीट की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है. आफ्टर दैट गवर्नमेंट विल पे फॉर योर एजुकेशन. सो इट इज़ वर्चुअली, आई वुड से एक तरह से देखा जाए तो फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. आप लोगों की फीस कितनी है पता है आपको? व्हाट इज़ योर फीस? 500 रुपीज़ Yes. इंक्लूडिंग कंप्यूटर फीस. और गर्ल्स के लिए तो वो भी नहीं होगी. वो 500 रुपीज़ में से 400 रुपीज़ तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट को दे दे रहे हैं. 100 रुपये गवर्नमेंट एक बच्चे के ऊपर लेती होगी. सो 100 रुपीज़ में वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है. डू यू थिंक इट इज़ इतना सस्ता कहीं पे एजुकेशन है? यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर दैट एंड यू शुड बी थैंकफुल टू गवर्नमेंट फॉर दैट. नेक्स्ट इज योर इरीगेशन फैसिलिटी. इरीगेशन मीन्स जो लैंड होता है दो तरह का होता है, एक फर्टाइल, एक होता है इनफर्टाइल. जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी होती है दैट कैन बी टर्न, दैट इनफर्टाइल लैंड कैन बी टर्न इनटू फर्टाइल लैंड, है ना. मतलब जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो. सो 2.6 hectare of land across the country was irrigated initially, which became to a 63 meter hectare in 2013. Why? Because government provided with the water facility. Government pipelines लेके आ रही है, water pipelines लेके आ रही है. ठीक है. Government provide with the hybrid seeds. Government provide with different pesticides, or you can say different tools to increase the you can say irrigation facility of the land. ठीक है. Next is literacy, which has increasing day by day. Initially, when we got independence, 18% people were literate. Reason जो हमारे Britishers थे, they did not want Indians to be more literate. ज़्यादा लोग पढ़ लिख लेंगे तो हमसे आगे बढ़ जाएंगे. This has increased to 73% in the 2011-12. ठीक है. So there are 20 universities, 500 colleges, etc. by the year 2013-14. This indicates rise in the higher education. Overall, you can see literacy has increased. The electricity, if we talk about the electricity facility, which was around 2,300 megawatts in the year 1950-51, increased to 2,43,000 megawatts.
पहले अगर अहमदाबाद की भी बात करें तो बिफोर फ्यू इयर्स अहमदाबाद में भी 24/7 365 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी, बट नाउ वी हैव दिस फैसिलिटी. Why? Because the government has worked on the electricity generation, and that to clean electricity generation, that is your atomic energy. Atomic energy के ऊपर government बहुत सारा R&D कर रही है, because it does not create any kind of pollution. रोड नेटवर्क की बात करें तो वी आर हैविंग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क which is approximately 48.6 lakh kilometer of concrete, you can say, road today. ये बहुत बड़ा रोड नेटवर्क है and the credit goes to our Indian government. Railways, we are the fourth largest, which is 65,000 kilometers. It was a gift by Britishers to themselves. उन्होंने खुद को गिफ्ट किया था, लेकिन उस गिफ्ट को वो ले जा नहीं सके. When we got independence, वो चाहते तो वो शायद ले भी जाते, पर रेल के ट्रैक उठा के ले जा नहीं पाए, तो वो हमारे पास उनको छोड़ के जाना पड़ा. ये सुनो, तो वो सब चीज़ें हमारे पास रह गई. वो जो छोड़ के गए थे, इट वॉज जस्ट अ बिगिनिंग. उसको हमने बहुत अच्छे से ग्रो किया, डेवलप किया, एंड इंडिया इज यू कैन से प्रोग्रेसिंग फास्ट, and it is emerging as a prestigious economy because of the efforts done by each and every government after independence. हर government ने अपने efforts दिखाए. I am not giving credit to any one government or any one leader. I am giving credit to each and every government. हर government ने अपना, you can say, contribution दिया. यहाँ के लोगों ने अपना contribution दिया. That is the thing which has led us to one of the, you can say, promising countries of the world. आज अगर कोई भी इंडिया की तरफ देखता है तो वो यही देखता है कि अगर मैं इंडिया में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज माय कैपिटल. ठीक है, यही पैसे कोई सीरिया में लगाना चाहेगा? कोई भी कंपनी सीरिया में बिजनेस शुरू करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी. क्यों नहीं करेंगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वहाँ पर अभी कंटिन्यूस वॉर चल रहे, कंटिन्यूस. ठीक है, तो नो वन वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन, यू कैन से, सीरिया. विल यू इन्वेस्ट इन चाइना? अभी चाइना में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो कोविड के बाद हुआ, कोविड की सिचुएशन के बाद में लोग जो चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अब इंडिया में फॉरवर्ड हो रही है. तो दिस इज ऑल्सो अगेन ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, हमें वो अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है, या फिर हमें जो बोलते हैं ना, वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू, यू कैन से, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड लीड आवर कंट्री टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर. सो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग फास्ट एंड इमर्जिंग एज अ प्रेस्टिजियस इकोनॉमी, एंड वी विल बिकम द, यू कैन से, डेवलप इकोनॉमी. ठीक है, within few years of time, 2030-35 का बोला था, लेकिन 2040 तक भी एक्सपेक्ट, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप मेरे जितने हो जाओगे, तब तक आप भी बोल सकोगे कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी. अभी आप डेवलपिंग इकोनॉमी के पार्ट हो, बट व्हेन यू विल ग्रो अप, व्हेन यू विल बिकम एडल्ट, तो आप एक डेवलप इकोनॉमी के सिटीजन कहलाओगे. फिर जैसे अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए लाइन लगती है, उसी तरह से हमारी कंट्री के वीज़ा के लिए भी लोग लाइन लगाएंगे कि भाई इंडिया एज अ डेवलप इकोनॉमी, चलो वहाँ चलते हैं. ओके, सो दिस इज द, यू कैन से, ओवरऑल इन ग्लिम्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. यू कैन सी यहाँ पे दिखा भी है लास्ट लाइन में कि इन 2011 इंडिया वॉज आइडेंटिफाइड एज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर यूएस एंड चाइना, while in 2005 it was in on 10th position. ठीक है, सो वी आर इन टॉप 10 डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. डेवलप नहीं, जिसके अंदर डेवलप करने का पोटेंशियल है, जो अपने आप को आगे प्रॉमिसिंग है, विच विल लीड टू द नेशन इन फ्यूचर. ऑलरेडी कुछ लीडर्स हैं, अमेरिका है, जापान है, जो ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, बट हम भी फ्यूचर में विल बिकम द लीडर्स. सो दिस वी कंप्लीट योर chapter, and I want all of you to complete your exercise. जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो मत करना, जो मैंने होमवर्क में दे दिए हैं, और अगर रिपीट हो रहा है तो मत करना. और आप लोग MCQ कंप्लीट करिए, और M1 मार्क्स कंप्लीट करिए, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके यू कंप्लीट द होमवर्क एंड सेंड इट इन द होमवर्क ग्रुप,
and all the students who send the homework write their name on the top, and monitors please make list of the homework. आज मंडे को 11 बजे तक जो जितने बच्चे सबमिट करें उसकी लिस्ट बना के मुझे सेंड कर देना, दैट आई विल सेंड इट टू प्रिंसिपल. ठीक है. So this is all about your chapter number what is the name of the chapter? Sorry, number 7. This is all about your chapter number 7. Next chapter will be जो मैंने आपको बताया था, that is economic reforms. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया ना इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में. About that we will discuss. Okay. Plus I need to show you, give you that वो वीडियो भी मेरे को आपको दिखाना है, वो भी दिखाना है इस चैप्टर से रिलेटेड. चैप्टर भी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद दैट वीडियो एंड देन वी विल शिफ्ट टू दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ओके. सो विद दिस वी कंप्लीट our chapter. Any difficulty in this chapter? किसी को कोई डिफिकल्टी है इस चैप्टर में? No, teacher. Fine. So end the chapter here. We'll meet maybe after day after tomorrow. Tomorrow to Sunday है, Monday को. For Monday we will have statistics lecture. Statistics will start with your new chapter, that is permutation. Very interesting, very important chapter. A and C. And और A और B में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आफ्टर 1991. ओके. गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स. टीचर वो रिजल्ट अभी आप लोगों ने सबमिशन में थोड़ा लेट किया था, इसकी वजह से अभी 20 तारीख का पेपर अभी चेक हो रहे हैं, और चेक होते ही फिर हम लोग रिजल्ट करेंगे. ठीक है. ओके टीचर, थैंक यू टीचर. ओके. बाय. Thank you, ma'am. ओके बेटा. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बेटा.